welcome back guys. The basics of stock market session number 4. This is Anish Dikshit again from Equity Analytics. So in the first few sessions we have already seen most of the points regarding to the company, secondary primary market indexes, different participants in the markets with distinct benefits to the companies, what is Sensex, Nifty, concepts of dividend, stock split, buyback we saw in the last session. Then we came to the fundamental analysis part where we discussed top-down approach. So in short, just to summarize, top-down approach is basically you start with analyzing a country from their fundamentals like their political stability, the GDP growth, fiscal deficit, other parameters. Then you go and study the different industries in the country, and then you come to the company study. That is known as a top-down approach. And bottom-up approach is basically you don't have these first two items to really study. You have given directly some companies to study. So that way you call it as a bottom-up approach. So you basically go and analyzing a company on these different parameters like we discussed. Studying their promoter background, market share, and financial strength of the company, different ratios, shareholding patterns, valuations, etc. So now we'll go to the fundamental analysis parts of details. So before that, let me take you through the overall P&L and balance sheet of a company. So whenever you go and try to analyze any company, first you have to go to the annual report of the company. So let's say, just as an example, we have just completed Maruti Suzuki financial model for few MBA students in my previous batch with them. So I'll just show you what kind of data we usually collect. So typically whenever you are doing any kind of financial model, usually you collect 4 to 5 years of data. So in case of this, you can see we have collected FY 15, 16, 17, 18, 19. Next 2 years we have forecasted. Forecasting part is basically for them who want to work as an analyst. So whenever you will learn financial modeling, then it will come to the picture. Right now you can ignore it. Right now you keep your analysis to the past data of the company. That is the latest 4 to 5 years you can analyze. You can just go and collect the data of their balance sheet or income statement, that is profit and loss account or cash flow statement. These things you can basically analyze. So where you get this data, just type any company, listed company, you can type on Google. Let's see, here it is Maruti Suzuki. So you get the website of a company. Yeah, so this is the annual report we have downloaded. Either you can download it from the website of a company or from the exchange website, that is BSE or NSE. So in the annual report, whatever things you are going to read, we'll just see. So first, you can read something about what is the report profile. In short, they have mentioned whatever the contents. Yeah, so from this, you have to read something about company profile. Then you can read about some key figures. Message from chairman and the managing director. These two are important statements. From the fundamental analysis point of view, company profile, you can see whatever the facilities they have currently, manufacturing sites कहाँ पे है, सेल्स ऑफिस कहाँ पे है, स्टॉक यार्ड्स क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पे मिलेगी. प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, एवरी ईयर हाउ मच इट इज इंक्रीजिंग, ये सब चीज़ें. Then you get some unit sales figure. This is an important figure. Unit sales मतलब कितनी कार्स मुझे बेची from 2015 onwards. यहाँ पे है 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख. So ये आप एक्सेल में चाहे तो ऐसे नोट डाउन करके रह सकते हो, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा. At what speed company is growing, how the volumes are growing. यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया था डोमेस्टिक वॉल्यूम एंड दिस इज द एक्सपोर्ट वॉल्यूम. सो एट व्हाट पेस दे आर ग्रोइंग, तुम लोगों को ये अंदाज़ा मिल जाएगा. टोटल डोमेस्टिक ग्रोथ कितना है, दोनों का डिफरेंस 10% से ग्रो हुआ है. ये फ्लैट था,
यहाँ पे 14% ग्रोथ है, यहाँ पे 2% है. लास्ट ईयर इट हैज़ डिक्लाइंड एक्सपोर्ट ग्रोथ एंड दिस वॉज अराउंड 6% growth. This year we are expecting 10 to 15% of fall due to various issues. इस साल वैसे भी ऑटोज का सेल्स काफ़ी डाउन रहा है और लास्ट एक महीने से कोविड का सिचुएशन है एंड ड्यू टू लॉकडाउन द सेल्स विल बी स्लाइटली लेसर फॉर दिस 2 months, March and April. Before that it was around 10 to 15% down. So yearly we are expecting around 15% drop in the sales of the Maruti Suzuki. तो ये चीज़ें हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, यू कैन नोट इट डाउन. वॉट एवर इज़ दी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बिजनेस मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू. कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसके रिलेटेड जो जो फिगर्स आपको मिलेगी वो आप नोट डाउन करके ले सकते हो एक्सेल में, जस्ट टू एनालाइज. देन you can check whatever the products or services, if you can correlate and find whatever is the differentiation factor. And there are some other ratios, any other information. In short, if you have time you can read, otherwise you can go to these things, key figures. If you check what kind of EBIT they have from FY14, was that is the margin of operating income, 7.3, 8.7, 10, 11, 11. So if you see for 4 to 5 years they have maintained a consistency in the margins, but in the last year it has slightly declined. Current year, reasons are obvious. Sales is down, there is a pressure on the inventory, pressure on the costs because of the currency and other issues. So this year particularly the ratios will take a hits, as it is also in the शेयर प्राइस भी आप देखोगे मारुति का तो वो ऑलरेडी गिर चुका है. 8-9 हज़ार का था लास्ट ईयर, अभी 5,000 का आ चुका है, 4,000 5,000 के रेंज में. बाद में ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, वो आप रेशियोज देखो कैसे 14, 16, 19, 22, 19. तो एक ट्रेंड एक पॉजिटिव है यहाँ पे, जो इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा डिक्लाइन होगा. बाद में डिविडेंड पे आउट रेशो वो एक कांस्टेंट मेंशन किया उन लोगों ने. ये 5 साल का उनका परफॉर्मेंस है. Sales growth, so continuously there is a rise in sales. यहाँ पे भी FY19 में भी, और अभी FY20 में थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइन होगा बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन, दिस ईयर स्लो डाउन ऑटो सेक्टर का. सिमिलरली फ्री कैश फ्लो देखोगे तो फ्री कैश फ्लो भी 14, 31, 58, बाद में 69, 79. इट इज़ ऑन अ कंटिन्यूस ग्रोथ पाथ. लास्ट ईयर इट हैज़ डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन्स, इन्वेंट्री, बाकी सब चीज़ें हैं, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हुआ कंपनी ने, बट ओवरऑल ट्रेंड इज़ पॉजिटिव. देन ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी देख सकते हो आप. ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड फ्री कैश फ्लो, दीज आर 2 important measures you can check. It gives you a clear picture how much exactly cash produced by the company. Then dividend is continuously increasing, 12 का 25, 35, 75, 80. ये एक पॉइंट है. प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो आप देख सकते हो कंटिन्यूस बेसिस पे इंक्रीज़ हो रहा है. तो इफ़ द ट्रेंड इज इंक्रीजिंग, क्या हर एक साल पिछले साल से ज़्यादा है, तो आप बोल सकते हो कंपनी डिसेंट परफॉर्म कर रही है. तो ये फिगर्स आपको चेक करने हैं. देन यू कैन चेक एंड रीड अबाउट द चेयरमैन्स मैसेज. यहाँ पे आपको इंडस्ट्री रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी. यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगेंगे तो आप वो नोट डाउन कर सकते हो. सिमिलरली मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO का मैसेज. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स इन द एनुअल रिपोर्ट यू हैव टू रीड, जैसे कि की फैक्ट्स, फिगर्स, ट्रेंड एनालिसिस ऑफ लास्ट 4-5 years, देन चेयरमैन्स मैसेज, डायरेक्टर्स मैसेज, एंड देन द लास्ट पॉइंट इज समथिंग कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस. तो वो आपको बाद में मिलेगा यहाँ पे. डायरेक्ट नहीं रहा तो यू कैन सर्च ऑल्सो. वन 36 पेज पे है.
तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट रहता है। यहाँ पे आपको मैनेजमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द कंपनी, अबाउट द इकोनॉमी। तो ये एक स्टेटमेंट आपको रीड करना है। वहाँ पे ओवरऑल जीडीपी, डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल ग्रोथ, मतलब पहले वो लोग ओवरऑल कंट्री लेवल पर डिस्कस करेंगे अबाउट द इकोनॉमी, देन उसके बाद इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, एंड देन हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग इन द इंडस्ट्री। तो ये 4 चीज़ें आपको एनुअल रिपोर्ट में रीड करनी है। उसमें से काफ़ी सारे फैक्ट्स और फिगर्स आपको मिलेंगे, वो आपको नोट डाउन करके लेने हैं एक्सेल में। जैसे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग में हम लोग थोड़ा डिटेल में काम करते हैं, तो बेसिक लेवल पे आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जो चीज़ें हमने अभी बताई वो आप एक ले सकते हो एक्सेल में, एंड देन यू कैन चेक कि रेशोज़ क्या क्या आ रहे हैं कंपनी के, कैसे आ रहे हैं। ये रेशो जो हमने भी कैलकुलेट किए वो ऑलरेडी कुछ वहाँ पे मेंशन थे एनुअल रिपोर्ट में, तो डबल आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट मेनली ये चीज़ें आपको देखनी रहेगी कंपनी की, कि EBITDA मार्जिन कितना है कंपनी का लास्ट 5 साल में। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो 13-14% के आसपास मेंटेन रहा था। नेट मार्जिन 8 से 9% के बीच में था। रेशोज़ एटलीस्ट मेंटेन चाहिए इफ़ दे आर नॉट इम्प्रूविंग। अगर रेशोज़ डिक्लाइनिंग है, जैसे यहाँ पे 12, बाद में 11 हो गया, 10 हो गया, बाद में 9 हो रहा है, मतलब इट्स ऑन अ कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड। तो दिस काइंड ऑफ कंपनीज आर नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू जनरेट इनफ कैश फॉर द इन्वेस्टर्स। अगर इन्वेस्टर्स को अच्छा लॉन्ग टर्म में पैसा है तो आपको ऐसी कंपनी सेट करनी पड़ेगी जो ईयर बाय ईयर ग्रोथ दिखा रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट और बाकी के रेशोज़। तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। सो कौन से पॉइंट देखें। फर्स्ट वन इज़ द चेयरमैन्स मैसेज, डायरेक्टर्स मैसेज, देन की फैक्ट्स एंड फिगर्स, trend of 5 years, and then management discussion analysis. These 5 points you have to read in the annual report and take the notes out of it. So that is the start of your financial analysis. The next structure क्या होता है बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट का। पहले तो आपको उसमें सेल्स दिखता है, then there are other income apart from your core income. It gives you total income और revenue। उसमें से आप कोर कॉस्ट बिजनेस का वो माइनस करते हो तो आपको आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये भी एक मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन आपको पता चलना है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आएगा। फिर उसमें से आप लोग अदर एक्सपेंसेस माइनस करते हो। सेल्स SG&A मतलब सेल्स जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस, अदर सारे एक्सपेंसेस। तो उसके बाद जो आती है फिगर उसको बोलते हैं बीटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसका ये फुल फॉर्म है। इसको ही बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मतलब टोटल इनकम से आप माइनस करते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पूरे, मतलब ये या COGS प्लस दिस, उसके से आपको मिलता है EBITDA, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। उसको ही बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बाद में इसमें से आप ये माइनस करोगे फिर से डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तब इसमें से क्या D&A चला गया, क्या रहता है फिर EBIT मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें से फिर आप माइनस करोगे I मतलब इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको बोरोइंग से डेट पे देना पड़ता है, तब जाके बचेगा आपका EBT, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से क्या फिर आप टैक्स तो पे करना होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, वो अराउंड 25% है अपने यहाँ पे अभी। सो वो आप माइनस करोगे तो आपको आएगा नेट प्रॉफिट, दैट इज अ फाइनल फिगर। और नेट प्रॉफिट से आपका आता है EPS, अर्निंग पर शेयर। सो अर्निंग पर शेयर क्या होता है बेसिकली, इज नथिंग बट योर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय योर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया होगा अर्निंग पर शेयर। ये फिगर आई है कैसे, ये है उनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपको एनुअल रिपोर्ट में मिलेंगे या फिर आप गूगल पे सर्च करके भी ले सकते हो किसी भी लिस्टेड कंपनी के। जस्ट मेक श्योर कि सेम करेंसी में, यहाँ पे इट इज़ इन द करोड्स, तो आपको करोड्स में वो कन्वर्ट करने हैं। अगर वो मिलियंस में तो वो मिलियंस में कन्वर्ट करके देना है। तो यहाँ पे करोड्स में तो करोड्स में रखे। तो अगर आप इसको EPS निकालना है तो नेट प्रॉफिट को आपको डिवाइड, ये है नेट प्रॉफिट कंपनी का फोरकास्ट है हमारा, तो इसको हमने डिवाइड किया इस फिगर से 302 करोड़ 0.08, देन वी गेट EPS फिगर, दैट इज अर्निंग पर शेयर। तो ये होता है अर्निंग पर शेयर। तो ये है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट फिगर्स क्या है, सेल्स जो हमने देखा पिछले 4 से 5 साल के आपका रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि ट्रेंड कंपनी ने मेंटेन किया है क्या,
टिपिकली लॉन्ग टर्म के लिए जब आप आओगे तो यू नीड इंक्रीजिंग काइंड ऑफ अ ट्रेंड इज कंपनी इन इट्स सेल्स इंक्रीज होना चाहिए, उसके मार्जिन्स अगर इम्प्रूव नहीं हो रहे तो भी ठीक है, बट मेंटेन होनी चाहिए क्रॉस मार्जिन, बिटा मार्जिन, एंड नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो शुड बी ऑन द इंक्रीजिंग साइड फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो ट्रेंड नहीं है वैसा, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। मतलब उसका मतलब है कि कंपनी का बिजनेस स्टेबल नहीं है, देयर इज़ अ साइक्लिकलिटी इन द बिजनेस, एंड अगर वो स्टॉक्स में आपको दिख सकता है अगर ऐसे टाइप की इंडस्ट्री है तो। सिमिलरली बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, उसके मेन चीज़ें तो बैलेंस शीट में है काफ़ी, बट आपको मेन ये देखना है कि इज इट अ लेवरेज्ड बैलेंस शीट, डेट कितना है कंपनी पे। बाकी चीज़ें वर्किंग कैपिटल है, वो है, वो तो बिजनेस के हिसाब से हर की होती है, बट अगर डेट उनका लिमिटेड है तो चांसेस आर हायर कि कंपनी विल सर्वाइव लॉन्गर। तो डेट की फिगर आपको नोट डाउन करनी है वहाँ पे। आइडियल रेशो अगर देखा जाए तो डेट टू इक्विटी का रेशो निकालते हैं तो इट शुड बी लाइक नॉट मोर देन 2:1। वो रेशो अगर मेंटेन हो रहा है तो ठीक है। उसका भी आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा कि पिछले 4-5 साल से अगर कंटिन्यूस रेट इंक्रीज हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो वैसी कंपनी आप इन्वेस्टमेंट के लिए चूज़ नहीं करो तो अच्छा है। डेट थोड़ा लिमिटेड चाहिए, मतलब डेट टू इक्विटी आप रेशो निकालोगे, दैट रेशो शुड नॉट बी मोर देन 1.5। 2:1 रेशो है, बट वी विल कंजर्वेटिवली से कि 1:1.5, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके अलावा हमने अभी देखा EPS कैलकुलेट किया था, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। और कौन से ग्रॉस मार्जिन हमने देखा, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप माइनस करते हो तो वो ग्रॉस मार्जिन आता है। बिटा मार्जिन हमने अभी देखा। सिमिलरली नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है अभी, नेट प्रॉफिट जो आपका आता है कंपनी का, उससे आप डिवाइड करते हो शेयर होल्डर फंड से। शेयर होल्डर फंड्स कहाँ पे मिलते हैं आपको, वो आपको मिलता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाओगे तो ये जो होता है टोटल इक्विटी इसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स। तो नेट प्रॉफिट से आप इसको डिवाइड करोगे इंटू 100 तो आपको आएगा वो रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज़ ये रेशो। ये रेशो भी आप देखोगे तो 17 से 18-19 मतलब मेंटेन है, बट इस साल थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है। तो आप शेयर प्राइस में भी देखोगे कि ऑलरेडी 5-7-8 हज़ार रुपये का शेयर अभी 4-5 हज़ार के आसपास भी आ चुका है बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस। तो ये एक इंडिकेशन है कि अगर रेशोज़ मेंटेन नहीं हो रहे कंपनी के 3-4 साल कॉन्सिस्टेंटली, तो इट्स नॉट अ गुड कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो वो कंपनी आपको साइकिल्स में रिटर्न देगी। मतलब अगर आप अपने एक्सपर्ट हो मार्केट में कि साइकिल्स आपको पता है बिजनेस के, देन ओनली यू कैन गो फॉर सच कंपनीज। अदरवाइज आप थोड़ा कंजर्वेटिवली करना चाहते हो तो कंसिस्टेंट कंपनियों में आप काम कर सकते हो। तो ये एक 4-5 रेशोज़ है जो आप नोट डाउन करके रख सकते हो। एंड टिपिकली आपको एनुअल रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन मिलती है ट्रेंड एनालिसिस में, EBITDA मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये चीज़ें आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर ट्रेंड अच्छा है कंपनियों का 4 से 5 साल का, तो आप ऐसी कंपनियाँ सिलेक्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये सब चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस में अबाउट रेशोज। देन अदर स्टेप्स विच यू कैन टेक इज रीड दिस इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस वेबसाइट्स इकोनॉमिक टाइम्स और मनी कंट्रोल। यहाँ पे आपको मार्केट रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाद में सेबी की, NSE BSE की वेबसाइट है, उस पर आपको न्यूज़ मिलेंगे टिपिकल स्टॉक्स के बारे में जो आ रहे हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हो तो वो आपको सब कंपनी के वेबसाइट पे मिलेंगे। तो यूजुअली आप कंपनी की वेबसाइट पे आके बाकी सब चीज़ें भी चेक कर सकते हो कि कुछ नया प्रेस रिलीज कंपनी ने दिया है क्या, अदर डिटेल्स कुछ। सो वंस यू कीप डूइंग दिस फॉर लाइक 5-6 मंथ्स आपको पता लग जाएगा कि कौन सी न्यूज़ का इम्पैक्ट प्राइस पे कैसे पड़ता है शेयर्स के। एंड स्टार्ट ट्रैकिंग दैट। एवरी क्वार्टरली रिजल्ट जब कंपनी का आएगा तब जब आपको चेक करना है कि रिजल्ट कैसा है कंपनी का, मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या था मार्केट में, देन उसका शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट हुआ नेक्स्ट 1-2 दिन में, तब जाकर आपको अंदाज़ा जाएगा कि हाउ द रिजल्ट एक्जैक्टली वॉज अकॉर्डिंग टू द मार्केट एक्सपेक्टेशन। तो ये एज एक्सरसाइज आपको करना है, देन आपका थोड़ा नॉलेज जो है वो डेवलप होगा। सो दिस इज़ अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। द नेक्स्ट part we will discuss about which stocks to select, typical hot stocks in the market, and mutual funds.